Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, representative Western political thinkers, and today we will again discuss about the political views of Green. And in our previous video we have discussed his ideas about liberty, state, etc. And today we will discuss his remaining ideas about like sovereignty, property, war and internationalism, his contribution and criticism. So let's start. First, here comes his views on sovereignty here. When we talk about his ideas about sovereignty, here comes his theory of general will, uh, as has been propounded by Jean-Jacques Rousseau. So the same theory is there, and we in our previous video we have discussed about the general will, so I have just only mentioned here, and you can see my previous video regarding the general will, theory of general will. Second one is views on property. While supporting liberalism, Green believes that property is essential for the development of the personality of a person. He also supports this right for the welfare of the public. According to Green, inequality regarding property in the society is just and right, but extreme inequality cannot be supported. Therefore, all should have the equal rights over the natural resources like land. Second one is views on war and internationalism. According to Green, war cannot be justified in any circumstances. It is a symbol of incomplete state. It is against the right of life of human being. Green also does not accept that idea, the idea that war encourages patriotism, bravery, etc. Only peace encourages human values, knowledge, and happiness. He condemns the war, and according to him, it does not represent the sovereignty or supremacy of the state. He wanted to establish an international society which would be based on the consent of the nations. Next one is contribution. When we talk about his contribution, uh, all his ideas, all his political ideas will be mentioned here in the examinations. That is his contribution to our discipline. And next one is criticism. First one is he supports and wants to maintain the present system and does not support changes, and being conservative he supports inequality of property. Second one is his thoughts are based on false philosophy of human nature, where he considers only good habits or virtues and ignores other aspects. And third one is demerits of theory of natural rights. So he has supported the theory of natural rights, that people used to have these natural rights, and at present they also enjoy the same. This theory is totally wrong according to some thinkers. आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक विचारक ग्रीन के विचारों के बारे में. हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने इनके विचारों के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने इनकी अधिकार है, स्वतंत्रता है, राज्य संबंधी विचार किए हमने. आज हम लोग बात करेंगे इनके विचार, संप्रभुता, संपत्ति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयता, इनका अनुदाय या देन, और लास्ट वन आ जाता है आलोचना. सबसे पहले आ जाता है इनके संप्रभुता संबंधी विचार. जब हम लोग ग्रीन के संप्रभुता संबंधी विचार करते हैं तो यहाँ पर सामान्य इच्छा का सिद्धांत आ जाता है, जो जीन जैक्स रूसो ने दिया था, और ग्रीन ने उसी को सपोर्ट किया है, उसी थ्योरी को. तो जब हम लोग इनके व्यूज ऑन सोवरेनिटी करेंगे, दैट्स मीन हियर कम्स द थ्योरी ऑफ जनरल विल. जनरल विल की थ्योरी यहाँ पर सेम आ जाएगी, जो हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट आ जाता है उनकी संपत्ति संबंधी विचार. क्योंकि ग्रीन एक उदारवादी विचारक हैं, इसीलिए उन्होंने हर व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया है, क्योंकि उसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है. इसके अतिरिक्त उनका यह भी मानना है कि संपत्ति का अधिकार या संपत्ति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे जनता का कल्याण होता है. यहाँ पर ग्रीन की विशेष बात यह है कि उन्होंने संपत्ति की विषमता को समर्थन किया है समाज में, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि जो अत्यधिक विषमता है वो समाज में नहीं होनी चाहिए. इसीलिए जितने प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे भूमि, उसके ऊपर सभी लोगों का ऑलमोस्ट इक्वल राइट, समान अधिकार होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाते हैं उनके युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार. युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार जब हम लोग ग्रीन के पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा
उनकी एक पीस को सपोर्ट करने वाले विचार है, क्योंकि उन्होंने वॉर को कभी भी जस्टिफाई नहीं, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में, उनका ये मानना है कि हम युद्ध को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, न्यायोचित नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। और यह भी कहना गलत है कि इससे किसी भी प्रकार की देशभक्ति या वीरता को प्रोत्साहन मिलता है। केवल शांति ही ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हमारे मानवीय मूल्यों को, हमारे ज्ञान को, हमारी हैप्पीनेस में वृद्धि करता है। इसीलिए जो ग्रीन है ये युद्ध की निंदा करते हैं और उन्होंने इसे किसी भी प्रकार से न सपोर्ट नहीं किया है। और यहाँ तक कि भविष्य में वे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समाज चाहते हैं जो विश्व बंधुत्व पर आधारित हो, जहाँ सभी राष्ट्रों की जो सहमति पर आधारित हो। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन का योगदान, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जब हम लोग ग्रीन का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो जितने उनके विचार हैं जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, राजनीतिक आइडियाज़, उन्हें वन बाय वन हम लोग कंट्रीब्यूशन में मेंशन करेंगे। और लास्ट आ जाता है आलोचना आ जाती है। आलोचना के अंतर्गत पहला आ जाता है कि ग्रीन के बारे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि वे वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, इस सिस्टम में बदलाव की या फ्यूचर में एक नया अच्छा सिस्टम सपोर्ट वो नहीं करते हैं। और इसीलिए अनुदारवादी विचारक होने के नाते हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने संपत्ति की विषमता को भी समर्थन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं उनके मानवीय नेचर, मानवीय प्रकृति के बारे में उनके जो विचार हैं वो थोड़े हमें बेस्ड ऑन फॉल्स फिलोसफी हमें लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव को सभी अच्छे गुण उसमें देखे हैं, सभी अच्छे जो भी वर्चूज़ हैं वो उन्होंने देखे हैं, जबकि मानवीय जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही पक्ष होते हैं। और थर्ड आ जाता है कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा जो आधुनिक विचारक हैं वो इस थ्योरी को समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जैसी वस्तु नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।